Hello, everyone, and welcome to a new episode of Virai's Wellness Podcast. Today, we have Vinod Bansal with us. He is a chartered accountant and a very well established stock market investor and trader. Welcome, Vinod, to our podcast. We are really happy to have you today. Thank you very much, Neetu. How Thank are you you? so much for coming. Yes, I'm very well, Vinod, and thank you so much for coming and agreeing to share your insights with us today. You are a chartered accountant for a very long time. I think I would have just started school at that time when you did, and you would have gone through a lot of since our conversation has happened before as well, you have gone through a lot of financial crisis yourself as well. So, the viewers would love to know how you came out of this financial crisis and what has been your journey so far, Vinod? So, I had financial crisis in 1998 and 2017 as well. So I learned a lot from the financial crisis. Like I saw the days when I I was thinking that I am rich, and I saw the days when I thought and remained poor for many years. Okay. Okay. So, life is all about learning. One thing I will say, uh, अगर आप कभी फेल हो जाते हैं तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, और आप दोबारा खड़े हो सकते हैं। आपकी हिम्मत आप में होनी चाहिए। अगर आप फेल होते हैं तो आप दोबारा खड़े होइए और दोबारा से कभी भी मत सोचिए कि पब्लिक क्या कहेगी, कौन क्या कहता है, उससे कोई इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो यू शुड स्टार्ट योर जर्नी अगेन। सो Right. मैंने काफी सीखा, मैंने हम्बलनेस सीखी, मैंने फेलियर से आदमी बहुत कुछ सीखता है। और किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोर्स में या एमबीए में या ग्रेजुएशन में फेलियर के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, बट फेलियर से आदमी बहुत कुछ सीखता है। Right. And Vinod, what Yes. is your suggestion to someone who has gone through some similar kind of experiences like yours, that they have failed and stood up and then failed again and then they are hoping to stand up again? What is your insight from your personal experience for people like them? So I read about Abraham Lincoln, and you know that he failed multiple times, and he went bankruptcy multiple two, three times, and many financial breakdown he had that time. And ultimately, at the age of around 62, 63 years, he became president of USA. So failure never stops you कि आपको फेल हो गए तो आपको फिर रुक जाना है या पीछे हटना है। अगर आपको लाइफ एक कदम पीछे लेके जाए तो आपको दो कदम आगे बढ़ना है। एवर ट्राइड एवर फेल्ड, नो मैटर, ट्राई अगेन फेल बेटर। तो नेक्स्ट टाइम जब फेल हो तो आपको पिछले कंपैरिजन करना है कि आप पिछले फेलियर से बेटर फेल हुए, उससे अच्छे रहा है आपकी बात करे जाके। Right. So when you were going through that kind of crisis, did you get some kind of support? I mean, if somebody is not aware, how to stand up back again, do we look for support? What exactly was your experience? Did like it happened organically for you that you figured it out for your own self, or you had some kind of mentor or, things that came across you that help you stand up back again? So since a long time, I am a spiritual person, and I followed Saint Kabir, and I read a lot about Kabir and tried to keep those couplets and teachings of Kabir in my life. So the one big sport from teachings of the Kabir came into my life, and that was a big sport. Other than that, the sport was from my family. My family spotted me like anything, and some good friends. In fact, all friends are good friends, but it is an outlook that who will support you in the financial crisis or who will not. Hmm. So some friends spotted me, and they always remained with me in the time of crisis, and I am here again, and I am doing well. Superb. And you did mention about how spirituality helped. What does spirituality mean for you, Vinod? Spirituality is all good and spiritual people says like this, yeah, spirituality is life is a journey and not a destination. You should enjoy your journey,
and you should not think about the destination, because ultimately we all have to die. So you enjoy, you should remain in the present always. Hmm. आ, जो करंट चल रहा है उसी पे ध्यान देना है। जो पीछे हो गया उसके बारे में नहीं सोचना है, जो आगे होगा उसके बारे में नहीं सोचना है। Think about the present, and you will find a bliss in this thinking, and you will complete your work very joyfully. So spirituality is a big thing, and you can learn continuously. You can learn spirituality by many things, by reading and by like following a practical life. One couplet of Kabir is very good. I can share with you. Uh, शिक्षक कुंभ और कुंभ मटका होता है, तो वो घड़ा घड़ा जिसको बोलते हैं, और शिक्षक को कुम्हार बोला गया है कबीर ने। शिष्य कुंभ और कुम्हार जो है वो शिक्षक है। वो उसके एक अंदर उसका हाथ अंदर होता है और एक बाहर होता है। तो वो उसको घड़े को बनाते टाइम, मिट्टी के घड़े को बनाते टाइम दोनों हाथ से उसको बनाता है। तो जो अंदर का हाथ है वो उसको सपोर्ट देता है, और बाहर के हाथ में एक स्टिक होती है जिससे वो उसको स्टिक को थोड़ा थोड़ा सा प्रेशर से डालता है, तो एक घड़ा बनता है। Hmm. तो कबीर ने कहा है कि जो प्रैक्टिस लाइफ है वो ऐसा टीचिंग की ही लाइफ नहीं है, बुक्स की ही लाइफ नहीं है। आपकी जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ को शेप देने में। सो अगर लाइफ में डिफिकल्टी आती है तो आपको वो स्पिरिचुअल बनाती है। Right. एक स्पिरिचुअलिटी में ये चीज भी है, आपको लाइफ में हमेशा हम्बल रहना है। Hmm. और हम्बलनेस में एक एग्जांपल है, मैंने जो अपने एक बुक में चैप्टर भी लिखा है कि हम्बलनेस, वी शुड बी हम्बल लाइक ग्रास। कि ग्रास को हम काटते भी हैं, एनिमल्स भी उसको खाते हैं, और ग्रास बारिश भी सहन करता है, धूप भी सहन करता है, स्टिल ग्रास कीप ग्रोइंग। सो वी शुड बी हम्बल लाइक ग्रास। सो Wow. स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारी चीजें हैं। Wow. Tell us more about this book that you have written, Vinod. What is its name, and what are the content, and who should be reading it? Right. So, one chapter of my book is Island of Self. आइलैंड ऑफ सेल्फ, व्हाट इज आइलैंड ऑफ सेल्फ? कि जब भी हम कभी भी परेशान होते हैं या पिछली बातों को सोच के हमें वो चीजें हिट करती हैं, या पीछे का सोचते हैं या आगे का सोचते हैं, और गीता में भी यही लिखा है कि आप पुरानी चिंता, पुराने टाइम की चिंता नहीं करो, और आगे का भी नहीं सोचो, जो आज चल रहा है वही बेस्ट है। सो उसमें देर इज अ थिंग विच वी कैन ऑल फॉलो, दैट इज आइलैंड ऑफ सेल्फ। आइलैंड कहीं और नहीं है, आपके अंदर ही है। सो आपको डीप ब्रीदिंग करनी है 3 to 4 टाइम्स। जब भी आपको कोई थॉट आपको डिस्टर्ब करता है, तो आपको 3 या 4 बार, 5 बार डीप ब्रीदिंग करनी है, गहरे और लंबे सांस। तो आप देखेंगे कि वो डीप ब्रीदिंग से ही आपको एक विद इन 2-3 मिनट्स में यू विल सी ए चेंज, बिग चेंज इन योर थॉट्स। सो दिस इज वन चैप्टर ऑफ द बुक। Okay, very nice. And किसको पढ़ना चाहिए ये book? Who exactly should pick up this book and why? देखिए, स्पिरिचुअलिटी जनरली ये माना गया है, द स्पिरिचुअल थिंग्स आर फॉर ओल्ड पीपल, और द पीपल हु आर मोर देन 50 years old और सो। बट स्पिरिचुअलिटी, ऑल द जनरेशन, whether it is a younger generation or old generation, all should read the spirituality. Any book on spirituality the people should read, and this book will give you 104 chapters, 2 chapters per week. सो इसमें आप जब एक काम करते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं, अपने ऑफिस में होते हैं, घर पे आप होते हैं, तो आपकी फाइट होती है, फैमिली से भी रिलेशन कई बार खराब होते हैं। तो जब आप धीरे धीरे स्पिरिचुअल होते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको वो बुक पढ़ने से आपको एक साथ में एक सिंपल सी सपोर्ट मिलती है टाइम टू टाइम, कि हाँ ये चैप्टर तो मैंने पढ़ा था और इसमें ये लिखा था, और इसमें ऐसा था कि हमें हम्बल क्यों होना है, हमें गुस्सा क्यों नहीं आना चाहिए, और ये भी उसमें लिखा था। तो वो चीजें फिर याद आती हैं जब आपको एक प्रॉब्लम हिट करती है तो। Right. That's insightful, Vinod. Uh,
So a lot of people, especially in corporates these days, they complain that there is toxic work culture, which causes them, stress, overthinking. ऐसे लोगों के लिए आपका क्या एडवाइस है? देखिए, मैं ये मानता हूं कि ऑल द पीपल शुड keep doing this practice of meditation. Meditation is just for 1 or 2 minutes. They should practice this thing, a deep and long breathing, just 2 or 3 minutes, just 1 minute. Or they should keep the mentor as well. In my opinion, there should be three things are most in life, most important in life, and that is mentor, schedule, and goal. सभी लोगों को अपना एक शेड्यूल बनाना चाहिए कि उसको उनको अगले 1 महीने में क्या करना है, 1 साल में क्या करना है, और वीकली क्या करना है और डेली क्या करना है। सबका जो काम है वो सब रिटर्न होना चाहिए, शेड्यूल बना होना चाहिए। तो आपका शेड्यूल होगा तो आपके सारे काम टाइमली कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। और दूसरा पॉइंट है गोल। आपका गोल क्लियर कट होना चाहिए कि मैं क्या अचीव लाइफ में करना चाहता हूँ। तो लोग इसलिए भी बॉदरेशन में या प्रॉब्लम में रहते हैं, टेंशन्स में रहते हैं कि वो उनके गोल सेट नहीं होते। तो हम्म। अगर आप मीडियम, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल आपके बना लेते हैं तो आपको क्लियर पिक्चर होती है कि मेरा ये गोल है, 1 ईयर का ये गोल है, 5 ईयर्स का ये और 10 ईयर्स का ये। तो आप क्लैरिटी होगी अगर गोल बनाने में, गोल बना के आपको क्लैरिटी आती है एंड देन यू अचीव योर गोल, तो आपको बहुत ही पीस पीस मिलती है मेंटली और आप खुश रहते हो। एंड थर्ड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपको हमेशा किसी को भी एक लाइफ में मेंटर रखना चाहिए, वेदर द मेंटर इज लिविंग और नॉन लिविंग। कई बार आपको लिविंग मेंटर अच्छे मिल जाते हैं, या फिर नॉन लिविंग, जिस जब भी आप डिफिकल्ट टाइम में हो आप उसके पास जा सकें, या फिर उसकी अगर वो नॉन लिविंग है तो आप उसकी बुक पढ़ सकें, और बुक से आपको काफी क्लैरिटी आएगी कि भाई हाँ, इन्होंने तो ये लिखा है और इससे ही मेरी प्रॉब्लम का मुझे सॉल्यूशन मिल गया। जनरली यहाँ पे हैबिट ही नहीं है रीडिंग की, तो वो एक रीडिंग हैबिट आपको बनानी पड़ेगी, ताकि आप जो पुराने स्पिरिचुअल लीडर थे या सेंट थे उनकी बुक्स आप पढ़ सको। राइट। सो बताना चाहेंगे कि आपके मेंटोर कौन रहे हैं और कैसे उनसे आपको हेल्प मिला? देखिए, मेरे मेंटोर कबीर तो रहे ही रहे हैं, नंबर वन सेंट कबीर। और अगर मैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स में हूं, तो मैंने वॉरेन बफेट को पूरी तरह से पढ़ा है। मुझे वॉरेन बफेट के जितने भी कोट्स हैं उनका अच्छी तरह से मीनिंग पता है। तो मुझे ये लगता है कि वॉरेन बफेट एक इन्वेस्टमेंट लीडर तो हैं ही, लेजेंड हैं, लेकिन इसके अलावा वो एक स्पिरिचुअल लीडर भी हैं। हम्म। मतलब उनको ये पता है कि उन्होंने जो भी वेल्थ क्रिएट की, और तो एक बार क्या हुआ कि ओबामा ने जब इलेक्शन लड़ना था, तो ही वेंट टू वॉरेन बफेट एंड आस्क्ड सम डोनेशन फॉर और पॉलिटिकल डोनेशन एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। सो वॉरेन बफेट गेव हिम ए बिग चेक एंड ओबामा ने पूछा कि व्हाई यू वांट टू गिव सो लाइक ए बिग अमाउंट एज ए डोनेशन। तो वॉरेन बफे ने कहा कि जो भी मैंने अर्न किया, जो मैंने क्रिएशन की, इन्वेस्टमेंट से मेरा इतना पैसा बना, उसमें मेरा बहुत छोटा सा रोल है। क्योंकि एक तो ये कि मैं अमेरिका में पैदा हुआ, तो आई वॉज फॉर्चुनेट। क्यों, अगर मैं कहीं पे अफ्रीका में पैदा हो जाता और मैं तो बहुत फैट हूं, और पीछे मुझे कोई एनिमल या जंगली जानवर पड़ता तो मैं भाग भी नहीं सकता, तो मैं मर जाता। ही टोल्ड हिम इन ह्यूमरस वे। हम्म। तो तो राइट टाइम पे राइट प्लेस पे पैदा होने की वजह से ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, और मैंने वेल्थ क्रिएट की। तो इसमें मेरा रोल बहुत छोटा है, जो वेल्थ क्रिएशन में। सो ये वेल्थ मेरी नहीं है, ये वेल्थ मैंने कम्युनिटी के सपोर्ट से वेल्थ अर्न की है, और ये वेल्थ कम्युनिटी की ही है। और इसीलिए जो मेरी वेल्थ है इसमें से कुछ जो जीने के लिए पैसा चाहिए वो रख के मैं बाकी सब डोनेट करना चाहता हूँ। Wow. Wow, that's so profound. Yes. यस। So of course, having these kind of mentors makes a lot of difference. And being able to follow them, being able to understand what they really mean is also something, because not everybody understands what these legends are trying to say. यस, वो तो बड़ा डिफिकल्ट होता है नीतू, क्योंकि लाइफ हमें एटलीस्ट इंडिया में या इस टाइप के बहुत सारे कंट्रीज में ऐसे सिखाई नहीं गई है। वो सारी मेटलिस्टिक लाइफ है जो हमें सिखाया गया है। हमें पैसा खर्च करके खुशी होती है, ना कि
हमें कोई ऐसा काम करके जो हम जिसमें हमारा पैशन है। तो वॉरेन बफे या फिर बिल गेट या कोई भी जो वर्ल्ड लीडर हैं, उन्होंने जो पैसा पैसा कमाया या मनी अर्न किया, वो उनके पैशन से हुआ। उनको उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि वो इतने वेल्थ क्रिएट करेंगे। लेकिन वो क्योंकि स्पिरिचुअल थे, उन्होंने पैशन दिखाया और उन्होंने वेल्थ क्रिएट की। और आज उनको ये आज भी ये लगता है कि वो पैसा, मनी या वेल्थ उनकी नहीं है। उनसे क्रिएट जरूर हुई है, वो जरिया जरूर थे, लेकिन वो वेल्थ उनके नहीं है। तो वो वेल्थ अल्टीमेटली कम्युनिटी के काम में आनी चाहिए। तो दिस इज वन पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। वाह, आपने पैशन की बात करी विनोद। सो अगर कोई बंदा पैशनेट है किसी चीज के बारे में एंड ही वांट्स टू डू दैट थिंग बट इन अ fearful state and not able to decide for themselves, what is your advice to those person? Actually, the God has created all the human beings for a particular work. This is a big canvas. Earth is a big canvas, and God has said all the people to make a painting on it. And all people are standing, making painting, and everyone has their role, has his role. So somebody is like diluting the ink, somebody is having brush in his or her hand. So सभी का पेंटिंग बनाने में रोल है। सो गॉड ने कहा कि भाई जाओ और आप एक अच्छा सा काम करके आओ। तो व्हाट इज दैट अच्छा काम? दैट इज योर क्वेश्चन, कि वो हाउ द पर्सन शुड डिसाइड कि उसके लिए गोल क्या है उसका। एक ही गोल है, जो काम उनको अच्छा लगे, जिस काम में उनका इंटरेस्ट हो, जिस काम में वो बिना थके 24 घंटे काम कर सकते हो, जो काम वो करें। क्योंकि लाइफ एक है। पैसे के लिए काम नहीं करें कि चलो मुझे इसमें पैसा मिलता है और मैं ये काम कर लेता हूँ, इसमें 50,000 मिलते हैं और इसमें 40। तो 40 वाला उसका काम पैशन पैशन वाला था, वो इंटरेस्टिंग था, वो 24 घंटे बिना थके हुए कर सकता था। बट 50,000 क्योंकि 10,000 ज्यादा है, तो मैं 50 वाला काम कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को इनकम ज्यादा है। तो कभी भी वो काम ना करें जो जिसमें इनकम ज्यादा है बट आपके इंटरेस्ट का नहीं है। काम आप वही करें जो आपके लिए इंटरेस्टिंग है। आप उसमें काम करेंगे तो थकते नहीं हैं। आप 24 घंटे काम करेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि कब 24 घंटे चले गए। तो आपका गोल सेट हो जाएगा कि आपको क्या चाहिए। Wow. And coming from you, I think this is something that a lot of us need to learn because you have seen, all facets of life and आपको personal experience है. So if it is coming from you, people, please listen to him. What he's saying comes with a lot of experience. Thank you so much for that, Vinod. And if we have to sum up all your life's lessons in one particular thing, what is that one thing that you want to leave the audience with today? सो द वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, हम बर्थ लेते हैं और फिर हम अपनी पूरी लाइफ जीते हैं। और इस बिजी शेड्यूल में हमने बर्थ लिया तो हमें पता ही नहीं चला कि हमने कब बर्थ लिया। लेकिन जब हम 4-5 साल के हो गए और थोड़े बड़े हुए तो हमें लाइफ का पता चला। हमने शुरू शुरू में इतनी डिफिकल्टीज फेस नहीं की थी, बाद में ज्यादा डिफिकल्टी फेस की। तो हम एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भूल गए। हम लोग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बर्थ लेने के बाद जीते जीते हम लोग मरना भूल गए। तो हमें किसी भी एज पे हम मरने की सोच सकते हैं और मरना स्टार्ट कर सकते हैं। कोई ज्यादा डिले नहीं हुआ मरना। तो मरना स्टार्ट करिए धीरे धीरे, अपने एंजॉय लेके। आप पैदा हुए तो आप किसी को नहीं पता, और आपको भी नहीं पता कि आप रोए थे या हंसे थे, और आपने वो पल एंजॉय नहीं किया। लेकिन मरना आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। मतलब I इस चीज think को that ध्यान में is रख सकते very हैं। deep. इस चीज को ध्यान में रख सकते हैं कि आपने मरना है। ऐसा नहीं है कि आपके सोचने से आप मर जाओगे या किसी के और के सोचने से मर जाओगे। तो आपको इस चीज को हिट नहीं है आपके दिमाग में करे कि आप मर जाओगे एक दिन। आप मरना भी इंजॉय करो और धीरे धीरे आज से मरना स्टार्ट करो, Enjoy करते हुए. एंजॉय करते हुए। Yes, that is very profound and deep, and I'm sure who's listening to this podcast might have got that answer that they were looking for. And I hope this podcast gave them the hope that they were looking for. With that, thank you so much, Vinod, for coming and sharing your insights today. This has been really, really enlightening for me as well. And best wishes, and thank you so much once again for coming. थैंक यू। Thank you.